Welcome back to my YouTube channel. Today with me, I'm having Dr. Shalu Sehgal. About her, she is assistant professor at one of the leading institute of Himachal Pradesh, that is Shulni Institute of Life Sciences and Business Management, and she is having experience of almost 15 years in imparting knowledge, and one of the corporate experience in book with Botswana, South Africa, and also she is working like finance controller, and also one of the YouTuber who is having a good subscription list. So, ma'am, welcome to my channel. Yeah, thank you, Vikrant. Thank you. It's a lovely. I'm looking at you and I'm just reminding those days when you were with me in my college. Wonderful, Yes. Vikrant. I'm so happy that such a good post and the work you are doing in the society. Every time, whenever I look at your videos, I feel so good that Vikrant is my student. Ma'am, I'm Really good, Vikrant. glad to hear that, and I also look up to the same expectation like you are having with me. So, how is everything is going in Solan? Yeah, very good, Vikrant. As such, Solan is so pleasant right now. Yesterday there was बहुत बारिश हुई. The whole night there was rain. Okay. तो इस टाइम बहुत ठंडा हो रखा है एंड आई थिंक कुफरी और अपर हिल्स में खूब बर्फ पड़ चुकी होगी बिकॉज वी आर फीलिंग दैट स्नो वहां पे है और यहाँ पे हमें ठंड लग रही है. Definitely, So ma'am. we are That really windy looking vibes forward. we can also feel here in Delhi, like 500 Oh, kilometers oh, away from mountains. yeah. Yes, ma'am. So, Good, good, how's Vikrant. life going, ma'am? How's life going? Life is very good, though there is a COVID, it has already hit me badly. From last 14 days, I was quarantined and isolated at my home only. But Okay. now feeling better. It's being now 16th day. I'm okay. You can see me. Keep No, 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 still no, no. smiling at Happy to least. see you, ma'am. Happy to see you. Like अभी भी मुझे Yeah. अच्छे से याद है when we were in Shulin Institute. So मतलब एक रोल मॉडल की तरह हम आपको देखते थे, जो आपकी क्लासेस, जो भी आपके लेक्चर्स, मतलब इतने अच्छी तरह से आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ उनको आगे शेयर किया. तो उसी का ये नतीजा है जहाँ पे भी हम आज हैं because of you people. And Oh, thank you thank for you, that. Vikrant. Thanks Thank from the you. bottom of my heart. जो भी आपने नॉलेज इम्पार्ट किया, और डेफिनेटली आई नो कि आप आगे आने वाले टाइम पे भी उसको और एक अच्छे लेवल पे ले जाएंगे. So, like, Good. where do you get this idea of YouTube? I mean, Very good. Okay, Vikrant. Actually, what happened, let me tell you, I still remember it was in March when government announced this lockdown. right. So we were packed at homes, and though we were taking online classes चल रही थी, students were totally engaged with us. But हमने फिर भी जब भी किसी फ्रेंड से बात करनी हो या किसी से बात करनी हो, जनरली हम फोन उठाते थे, ऑडियो कॉल्स करते थे. Right. बट आई डू रिमेम्बर हमने एक दूसरे को वीडियो कॉल्स करना शुरू किया बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे, बिकॉज लोगों से तो Right. मिलना नहीं होता था. वी Right. वर इनसाइड होम्स. Right. तो धीरे धीरे करके व्हेन मिस्ड कॉल्स हैपन, तो हमने क्या करना शुरू किया, एक दूसरे को वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करके शुरू करिए, ग्रुप में भेजना, हर रोज टास्क रखना दैट वी हैव टू स्पीक ऑन कोरोना पे बात करेंगे, किसी और चीज पे बात करेंगे, हेल्दी टॉक्स करेंगे. ये Right. चीजों का हमने एक ट्रेंड शुरू किया इन ग्रुप. एंड आई डू रिमेम्बर बहुत अच्छा चलता रहा, हफ्ता 2 हफ्ता. आफ्टर दैट वीक्स जब मैंने फील किया कि जब मैं अपनी वीडियो को खुद देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था दैट वट एवर आई हैव रिकॉर्डेड, आई फील माई सेल्फ वेरी नाइस. बिकॉज जनरली द बेसिक आइडिया वॉज, हम वही आइडिया दे रहे थे कोरोना के बारे में या कोई और बातें ही कर रहे थे. तो आई जस्ट टुक एन आइडिया एंड आई थॉट क्यों ना मैं एक यूट्यूब पे डालूं इस चीज को, रिकॉर्ड करूं, सो दैट नॉट ओनली माई फ्रेंड तक ये रहे, it should maybe some other people also listen that idea. So I still remember that date was 29th April जब मैंने सबसे पहला अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और YouTube पे पोस्ट किया. So you can say my YouTube actually started on 29th April 2020. Right. So yeah, and slowly my journey is going on. अगर तुम मेरा YouTube if follow you, I know you are following my YouTube, but I'm your if big you fan. follow in the initial time, I do record myself and giving some messages to the society. Maybe in some videos I took my students along with me. Right. Also. तो ऐसे ऐसे करते करते हमारी जर्नी आगे जाती रही. आजकल अगर तुम देखते हो विक्रांत, आई थॉट कि मैं अपने चैनल को एक नई लेवल पे लेके जाऊं, और उसके अंदर व्हाट आई स्टार्टेड, I start telling my audience about moral ethics, which is actually really required in the society, especially for the youth.
I want to give them the best of intricacies of relationships. हर कोई रिलेशनशिप की वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, लव लाए, केयर लाए, हर चीज के अंदर. सो यही थॉट मैंने आगे लेके जाना चाहा. तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, बिकॉज आई एम ए मैनेजमेंट स्टूडेंट. I thought why not convey my things through stories. So that's how I think come with this idea on my YouTube channel. I start posting stories, and definitely if you check my any video, any single video, any story, there is moral at the end of the story, Right. which I think that is from my heart. प्लीज जो भी इस वीडियो को सुनेगा, ध्यान रखना कि जब भी मैं कोई स्टोरी बोलती हूँ, उसका जो एंड है ना, वो मेरे दिल से निकलता है, बहुत दिल के. मतलब आई गिव लॉट ऑफ टाइम व्हाइल मेकिंग मॉरल फ्रॉम माय स्टोरी, एंड दैट इज रियलिटी व्हिच इज रियली रिक्वायर्ड इन टुडेज यूथ. But I Yes, still Vikrant. remember like in our college days how influenced we were. जब भी आपका lecture होता था तो I mean we used to take that stuff seriously because बहुत से टाइम पे भी मैम अगर मैं बात करूँ like it was back in 2010 2011 उस टाइम पे भी जब हमारी PPTs का मतलब तब से ही स्टार्ट हो गया था. We used to deal in like PPTs and all stuff. So एक जो क्लासरूम के अंदर में पढ़ाई मतलब वैसे बोला जाता है कि जो भी आप क्लासरूम में पढ़ते हो वो हार्डली लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है. जो भी हम जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं मतलब कुछ एक्सटेंट तक वो सही है. बट अगर हम बात करें जो आप लोगों ने टीचिंग हमको एक मैनेजमेंट की जिस तरीके से दी है लाइक वी वर लाइक इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट. तो वो लेसन्स आज भी हमको लाइफ में काम आ रहे हैं. तो उसी के लिए Thank you. आपने अभी बताया कि यूट्यूब का आपने स्टार्ट किया था. इनफैक्ट अगर मैं भी बात करूं तो आई मीन 2 years पहले भी एक मैंने वीडियो डाली थी. तो दैट टाइम यूट्यूब का क्रेज इतना नहीं था कि आई थॉट कि दैट आई विल गेट अ I गुड still रिस्पॉन्स. remember, Vikrant, I would like to say, sorry interrupting. I still remember when your first video came on YouTube, we Yes. were so happy. Look, our Vikrant is there. Our student is there. Wonderful, Vikrant. I do remember. Yes, please यस continue. यस मैम. तो उस समय भी 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था कि आई डू नॉट वांट टू हैव एनी रिग्रेट इन माय लाइफ कि मैं कभी गाना निकालूं. तो मैं जो मुझे अच्छा लगा था तो वो मैंने कर दिया कि मुझे रिग्रेट नहीं रखना है. तो उसके बाद थोड़ा सा फिर मैंने ध्यान नहीं दिया. तो वो मेरी गलती थी कि भाई आई कुड हैव स्टार्टेड यूट्यूब मतलब लाइक एज ए फुल फ्लैश एट दैट टाइम. बट स्टिल 1.5 साल का गैप हुआ. तो जो ये टर्निंग पॉइंट मतलब यूट्यूब वाला मेरी लाइफ में आया, आई गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर वीडियो लाइक in April, like जैसा आपने कहा कि अप्रैल में. तो यू kept पोस्टिंग रेगुलरली आई थिंक उस टाइम पे. तो मुझे लगा Yeah. कि यार मैम ना मतलब वो एक इन्फ्लुएंस जो वाली चीज है मैं भी यही चीज स्टार्ट करने वाला था कि मोटिवेशनल वीडियोस में बनाऊं या व्लॉगिंग डेली व्लॉगिंग आई कैन स्टार्ट. एट द एंड ऑफ द डे जो आपने बताया कि एक मॉरल एथिक पे जो कि आर नीड ऑफ द आर है कि जो हमको एक सोसाइटी में एक मैसेज देना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड आई वाज इन फेवर ऑफ दैट. एंड बाय वाचिंग योर वीडियोस आई टोटली गॉट इन्फ्लुएंस्ड कि भाई मुझे भी यही काम स्टार्ट करना है. तो कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको भी जाता है कि जो मैं अभी भी यूट्यूब God की bless जर्नी you. स्टार्ट कर रहा हूँ. मतलब इट्स नॉट लाइक कि वी आर हेयर टू गेट फेम एंड ऑल. क्योंकि हमको ये सब चीजें अच्छी लगती है कि किसी को मोटिवेट करने में खुशी मिलती है या कोई एक मैसेज सोसाइटी में आगे जाए कि जिससे किसी का भी भला हो सकता है. क्योंकि जो भी हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं मे बी वो हमारी अगर वीडियोस देखते हो तो हमारी वीडियो में कहीं ना कहीं एक मॉरल लास्ट में एक रहता ही है. कुछ एक अच्छा मैसेज रहता है जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है. सो मैम कमिंग बैक टू यूट्यूब लाइक मेरे को अभी भी याद है स्कूल कॉलेज में भी छोटे से हर किसी से पूछा जाता था कि आपको क्या बनना है बड़े होके. तो कोई भी बोलता था मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. तो ये 2-3 कॉमन से हमारे आंसर्स रहते थे कि मुझे सीए. आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई हैव दैट मेमोरी. मुझे ना सीए का 8th-9th क्लास से तो मुझे कहीं सुना था कि भाई सीए बनना है ऐसे. तो 8th-9th क्लास ही मैं बोलता कोई भी पूछता था मुझे सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. तो देन मैंने फिर कॉमर्स लिया, फिर आगे बीबीए करी. तो वो क्रेज मेरा कहीं ना कहीं जाके मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ा सा कम हो गया. बट अगर मैं आज बात करूं कि इफ हाउ डू यू सी लाइक यूट्यूब एज अ करियर बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस यूट्यूब लाइक अमेजिंग मैन. जैसे अभी लॉकडाउन हुआ और जब से जियो ने अपना थोड़ा सा बीच में स्टार्ट कर दिया था. जियो हम इसको जियो रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं कि इंटरनेट Yes, की yes. एकदम से जो रीच है वो मतलब 1000 मतलब मिलियंस लोगों के पास पहुंच गई है. तो उससे क्या है जो हमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ये उसमें यूट्यूब इज वन ऑफ द मेजर प्लेटफॉर्म जहाँ पे True. कि मतलब how do you see like if somebody wants to pursue his or her career in YouTube then how do you see Yeah. that? Very good question at this time, Vikrant. Very nice. Yes, I do look YouTube as a career nowadays. Let me tell you why. What is the reason?
I'm not saying that everybody can be YouTuber, even not me. I'm just looking at myself, even at the first level, though I have completed those subscriber and other things, but still I feel like if I will remain consistent in this thing, अगर मैं रेगुलरिटी रहेगी, मेरी डिटर्मिनेशन रहेगी, जो काम मैं करना चाहती हूँ, अच्छा कंटेंट जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ सोसाइटी को दूंगी, एंड दोज थिंग्स व्हिच एक्चुअली माय ऑडियंस वांट, अगर मैं उसको कैरी करूंगी, देन ओनली आई थिंक मेरा यूट्यूब चैनल भी आगे जाएगा. द सेम थिंग आई जस्ट वांट टू से एंड कन्वे टू द ऑल यूट्यूबर, अगर वो अपना करियर देख रहे हैं, दोज हु जस्ट स्टार्टेड, उन सबको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी. Yes, YouTube as a career is very important. Yes, it can be. हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर हर कोई नहीं बन पा रहा है ना. We can see that. Again, अगर उनको भी बनना होता है तो हम कहते हैं कि yes, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रेगुलरिटी लानी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपनी चीजों के लिए ऑनेस्टी करनी पड़ेगी. Same case goes with YouTube also. Right. और मैंने देखा अभी कोविड के अंदर भी मेरे जैसे, हम जैसे विक्रांत, आई शुड से कि आप भी बिल्कुल, आई थिंक हमारी स्टेजेस दोनों की सेम है. अगर हम जैसे लोग भी आगे जाना चाहेंगे तो हमें पहले कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, हमें ऑनेस्टी करनी पड़ेगी, वो भी यूट्यूब के साथ. हमारा कंटेंट कुछ डिफरेंट होना पड़ेगा बाकी सबसे, तभी हमें लोग पसंद करेंगे. द सेम थिंग गोज विद दोज पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग एज अ करियर इन द यूट्यूब. गेमिंग कर देते हैं बहुत से स्टूडेंट्स आजकल, या किड्स या बच्चे, मैं कहती हूँ, गेम लगा के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, एंड यू विल सी थाउजेंड ऑफ पीपल, मोर देन लैक्स आई कैन से, कि लोग हैं ऐसे जो अपनी गेमिंग में करियर बनाना चाहते हैं, दे आर पुटिंग ऑन यूट्यूब. Eventually they will, I'm not that much sure about these things, but eventually one day will come कि इस चीजों की डिमांड नहीं रहेगी, game and all. So I think to become a YouTuber, first you have to become a good content maker. कंटेंट क्रिएटर, राइट. मैम, इसमें थोड़ा सा मैं एक एडिशन करना चाहूंगा. लाइक प्लीज हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में अब लोग अलग अलग टाइप की वीडियोस डालते हैं. लाइक इफ somebody इज गुड इन सिंगिंग तो वो अपने कवर्स डालते हैं, या कुछ भी कॉमिक वीडियोस. लाइक बहुत से हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जीरो से हीरो की उनकी जर्नी रही है. तो इसमें मैम एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें जो पेशेंस की गेम ऑफ पेशेंस है, दैट इज मच मोर रिक्वायर्ड. सो हाउ डू यू सी लाइक पीपल आर गेटिंग ओवर एंक्शियस और ओवर एम्बिशियस कि भाई आज मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया तो कल से ही मेरे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे. आई मीन आपने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया है, वो कंटेंट कुछ हद तक लोगों के पास पहुंचना चाहिए, और उसी बीच में लोग अपना पेशेंस बिल्कुल छोड़ देते हैं and they left YouTube. बिल्कुल विक्रांत, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. शायद उन लोगों में से मैं भी एक होंगी. मैंने भी जब स्टार्टिंग में YouTube चैनल शुरू किया, आई फील लाइक कि आई डोंट नो हु विल लाइक माय कंटेंट और नॉट, but I know this thing because I keep on doing some online courses all the time. So I only learn this thing, काम करके छोड़ दो. Right. You have done your best. Results will definitely come with hard work. If you've done these things, definitely results will come positive. So ये patience की बात जो तुमने बोली है, बहुत ठीक बोली है. जो लोग patience के साथ चलते रहेंगे, again वो these consistency and 3 Ds will definitely work. Determination, ये all सारी चीजें हमारे बीच में होंगी तो हम अपने चैनल को कहीं तक ले जाएंगे. Those who will not having these things, maybe they will lose the game and they will leave in between. राइट. अब इसमें भी एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ. लाइक पहले लोग बोलते थे कि मुझे हीरो बनना है या हीरोइन बनना है, आई हैव टू गो टू मुंबई. लाइक नाउ यू हैव द कैमरा, नाउ यू कैन स्टार्ट इट एट योर ओन प्लेस. देयर इज नो वन रिक्वायर्ड फॉर लाइक आपको, अगर आपके अंदर में टैलेंट है तो आप उसको मोबाइल उठाओ, आप शूट करो, यू कैन बी द नेक्स्ट सुपरस्टार. I mean, in every context, like if you love singing and or if you are a motivator, you are the best. You are the best example for that. Your first song that जिसने viral हो गया पूरी network पे, पूरे internet पे, that was fantastic. That is the best example for that. I never expected like 8K or 9K views. I was like, जब भी हम Facebook पे वीडियो डालते थे, 500 views for not just for the sake of like getting views, but what I love is more important than expecting all other things. Because कहीं ना कहीं यही चीज होती है, अगर आप अंदर से आपके वो चीज नहीं है और आप कर रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं पे जाके आगे स्लो हो जाती है. बट इफ यू लव समथिंग फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, देन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी ऑन बूम लाइक आफ्टर से 5 years or 6 years. So पेशेंस की गेम तो मैम मस्ट रिक्वायर्ड है. Required है. So how do you spend your day? And okay, sorry. Yeah, before that, Vikrant, I would like to say one thing for my audience and viewers who watch and listen my stories.
व्हेन दे पोस्ट द कमेंट, जब वो एक कमेंट लिखते हैं ना, मैं बताऊं मेरी सारी वीडियो का जो मेरी मेहनत है, हार्ड वर्क एट द बैक ऑफ द कर्टन है ना, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती विक्रांत, वो मेरे कमेंट मुझे वो सारी एनर्जी वापस देता है और मुझे फिर से पुश करता है एक नई स्टोरी बनाने के लिए, एक नए मॉडल बनाने के लिए। तो मेरा प्लीज मेरे लिसनर्स को है, मेरे यूट्यूब पे कमेंट करते रहना सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। लाइक और कमेंट, ये दो चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पावर देती हैं। रियली थैंक यू। राइट मैम, दिस इज दी लाइक क्रक्स भी बोल सकते हैं आपकी, जो आपकी पूरी मेहनत है वो आपकी ऑडियंस लाइक और शेयर करने से वो आपका हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आई मीन जो भी यूट्यूबर है या जो भी अपना करियर ऐसे यूट्यूब पार्ट टाइम जो भी लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मस्ट है, उनकी मेहनत अगर कोई शेयर करता है तो वही चीज उनको आगे मोटिवेट करती है। तो आई थिंक दिस इज मस्ट फॉर एवरी यूट्यूबर कि जो भी व्यूअर्स हैं हमारे वो देखें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और मतलब स्पेशली आई जस्ट वांटेड टू टेल टू माय व्यूअर्स दैट कि दे मस्ट वॉच शालू मैम्स वीडियोस, क्योंकि उसमें जो क्रक्स होता है ना, लाइक दो तीन चीजें मैम, लाइक मैं कभी ऑफिस का टाइम मेरा कभी खराब टाइम गया और मैं अपना यूट्यूब सर्च करता हूँ, देन आई गो टू लाइक संदीप माहेश्वरी की कोई मैंने मोटिवेशनल वीडियो देख ली, तो नाउ आई कैन से अगर मैं आपकी वीडियो को भी उस कंटेक्स्ट पे या उस लेवल पे कंपेयर करूँ, देन योर वीडियोज आर मैम रियली ऑसम मैम। वो ऐसे कि डूबते को तिनके का सहारा, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कोई चीज रिक्वायर कर रहे हैं और सेम टाइम आपने वो अपलोड की हुई है, तो उसको सुन के भी थोड़ा सा हम अपनी को मोटिवेशन ले सकते हैं। तो यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा मैम की वीडियोस देखें और शेयर कीजिए। तुमने जो अभी एक बात बोली कि समटाइम्स हम मेरा वही कंटेंट सामने आ जाता है व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय ऑडियंस, एंड सीरियसली विक्रांत ऐसा बहुत बार हुआ है। मुझे कई बार ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं ऑन माय पर्सनल विंडो आल्सो और माय यूट्यूब आल्सो कि आज इसी वीडियो की, आज इसी स्टोरी की जरूरत थी, इसी मॉरल की जरूरत थी। तब विक्रांत इतना मोटिवेशन मिलता है ना मुझे कि वाओ, आई हैव वर्कड समथिंग इन समवन्स लाइफ, आई हैव हेल्प्ड समवन जस्ट बाय गिविंग स्टोरी टू देम, जस्ट बाय स्पीकिंग फॉर देम। अभी मुझे, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी विक्रांत, अभी मुझे जैसे किसी का फोन आता है, मोस्ट ऑफ द पीपल कॉल मी लाइक कि हमने ना एक बड़े स्पीकर पे लगा के, टीवी पे लगा के कई बार आपकी ऑडियो सुनते हैं। द रीजन बिहाइंड, कहते हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब ऑफिस से थक के आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली इन अदर कंट्रीज। अभी रिसेंटली आई रिसीव्ड वन कॉल फ्रॉम माय ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड, ही सेड कि शालू, आई वाज जस्ट लिसनिंग योर स्टोरी व्हेन आई केम बैक फ्रॉम ऑफिस, ही इज वर्किंग इन डिफेंस ऑस्ट्रेलिया, सो ही सेड कि योर वॉइस वाज गिविंग मी सम एनर्जी, यू नो, पूरा थक के आया था बट फिर से फुल एनर्जी चार्ज हूँ, यू नो, सिर्फ इतनी लाइन। एंड ही सेड सी, उसने मुझे फोटो भेजा कि देखो इतने बड़े स्पीकर से आवाज आ रही है शालू तुम्हारी, और कहता है वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल माहौल बन जाता है। तो विक्रांत तुम बताओ, अब एक स्पीकर को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नो डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं तो मैंने आपको, यस मैम, मैं तो पहले से भी आपको कहा है कि मतलब ये एक किसी भी मतलब जो कंटेंट क्रिएटर है, अगर उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिले, इनफैक्ट मैंने भी जब जो गाना निकाला था तो लोग यूज्ड टू सेंड मी स्क्रीनशॉट्स कि भाई तेरी बड़ी स्क्रीन पे तेरा गाना देख रहे हैं, तो दैट गेव मी सम मोटिवेशन कि मैं आगे और भी कंटेंट अच्छा बनाऊं अपना, किसी के भी जो आगे काम आ सके। सो आई मीन दिस वर्क्स एज ए मोटिवेशन मैम, आपको और भी आगे वो नच करता है कि आप अच्छे से अच्छा काम करें। So, ma'am, बिल्कुल विक्रांत, how do you spend your day? Like you are like full busy, ma'am. आपके seminars, webinars. So, how do you manage your day? Yeah, management, very good. Vikrant, though I told you my primary focus is my job. I'm assistant professor in Sholani. So maximum time I spend with my students. Like online classes are there. Then some online activities we do with my students. Right. Maximum time I'm with them, but still my own time, I can say I spend just improving myself. I do attend so many seminars. Let me tell you, in accounting, I have wrote this thing, मैंने कहीं लिखा है, काउंट करने की आदत है मुझे, तो मैंने पूरे जितने लॉकडाउन के अंदर मैंने वेबिनार्स अटेंड किए हैं, कैन यू बिलीव इट्स ऑलमोस्ट 82 webinars I have attended, and those all related to my learning. Like that can be management learning, that can be other learning. Even I attended so many science webinars. Can you believe? Because I have interest in AI a lot, artificial intelligence. I'm crazy about electronics. E-world for me is something. अगर मुझे कोई बोले this is the computer, this is the internet, and these are some gadgets with you, I can spend, I think, 1-2 months. I don't need to go out of my room.
मैं अपना पूरा दिन ऐसे निकाल सकती हूँ. So like this is what actually my habit. तो वेबिनार्स मैंने खूब वेबिनार्स भी अटेंड किए हैं इन दिनों में, और मैंने वेबिनार्स कंडक्ट भी बहुत किए हैं. रिसेंटली मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, बहुत अच्छा मैंने एक प्रोग्राम, 1 month प्रोग्राम था वो, पूरा 30 days का मैंने एक TTOT, दैट इज द train the online trainers, मैंने एक कोर्स किया अभी, which helped me a lot. That was fantastic course, or that was like some army people have made that curriculum, and I attended that. I was lucky, so I made one community even with them, and they all people are doing some next level work, Vikrant. They are giving such a lovely opportunities. Because of that program only, I have associated with more than 500 people which are actually involved in so many good things जो society के लिए अच्छी हैं. Yeah, you can say they are all are motivational speakers, motivational, they have wonderful life. So I'm so influenced because of that TTOT program, and I start implementing all those things in my life, जो मुझे टाइम मैनेजमेंट भी सिखा रहा है, हाउ टू बिहेव इन अ सोशल वो भी सिखा रहा है, हाउ टू मैनेज ऑल माय एक्टिविटीज. आई थिंक उसने मुझे बहुत पुश किया है. अदर देन मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी. आजकल मैंने 3 वर्कशॉप्स होती हैं वीक में, 1 इन अ डे होती है वर्कशॉप, इन अ वीक सॉरी, एक हफ्ते में एक बार वर्कशॉप है. दैट इज लाइक नरेटिंग द स्टोरीज, राइटिंग द स्टोरीज, and one is like putting and to showing the story in public. It's like 3 workshops are there. एक हफ्ते में एक दिन आपको चांस मिलता है. And Vikrant, let me tell you, I completed my 2 stories, short stories, and those are wonderful. My like वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं जो बहुत बड़े writers हैं, authors हैं from last 18-17 years, but I'm very new, just 1 month old writer. तो people love that, and मुझे भी बहुत मजा आ रहा है उनके साथ. This is really So wonderful, ma'am. yeah, that's all I'm doing in my whole day. Yeah, you told something about AI. Could you please brief our viewers what is AI? This is all about artificial intelligence, which is actually बहुत जल्दी हर घर में दिखाई देगी, हर person की life में होगी. Already you can say these mobiles are working a lot as a AI in our life. तो robots will be there. मैंने अभी कुछ दिन पहले एक इंजीनियर से के साथ मेरा इंटरव्यू था. सो आई आस्क्ड हिम द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्या एआई एक थ्रेट होगा हमारे लिए या एआई एक हेल्प होगी हमारे लिए. सो वेरी नाइसली ही एक्सप्लेन्ड मी कि एआई कोई थ्रेट नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. ही एक्सप्लेन्ड वेयर एंड टोल्ड अस, एंड उसने मुझे बताया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी लेवल तक की काम करती है. ऐसे नहीं कि ये डराया गया सबको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण लेबर वर्क खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. He explained very well to me. Now he's posted at Jammu. तो उसने ये भी explain किया कि रोबोट किसी लेवल तक काम करते हैं. ऐसा नहीं कि ये ऑपरेशनल लेवल का भी सारा काम रोबोट्स को दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट स्टिल यस, दे वर्क एज अ मशीनरी, दे विल वर्क, दे जो ह्यूमन 100 लोग काम करते हैं मिलके, वो एक रोबो कर देगा. तो प्रेफर भी ये किया जाएगा बहुत जगह पे, बट इतना फिजिबल नहीं है कि हर कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग उसको हायर कर सके और खरीद सके. सो कहीं ना कहीं बॉट्स भी इतना परेशान नहीं करने वाले हमें आने वाली टाइमिंग में, बट स्टिल एआई विल बी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो जरूर हो जाएगा. Great. Yes. So for our viewers जो ये नहीं जानते हैं, शालू मैम is from सोलन, हिमाचल प्रदेश. सोलन जिसको हम मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. So मैम आप थोड़ा सा बताओ अभी कैसा वेदर है and how is everything going? Like I miss being विक्रांत, in उससे Solan. पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं सोलन में कैसे आ गई. आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन अबोहर, पंजाब से हूँ मैं. तो माय स्कूलिंग इज फ्रॉम अबोहर ओनली, एंड लेटर I did my BSc in computer application from PU University Chandigarh. उसके बाद मैंने अपना MBA complete किया, जबकि I never thought after doing computer applications I will go in MBA. Though I went for MCA में admission लेने गई थी, और कहते हैं ना कोई magic हो गया, and there were 2 chairs थी, या तो MBA के admission लेने के लिए या MCA में. I do remember I took admission in MBA. How it happened I don't know. कुछ हुआ होगा, भगवान ने चाहा होगा, नहीं पता. So, and after completed my MBA, immediately I got an opportunity to visit on job to South Africa. I worked there in Botswana and Bookwood.
as a finance controller for 1 year. So when I came back, I never came back to settle here, but when I came back, I got married. So and 2006 में शादी हुई मेरी, और मुझे था कि मुझे वापस जाना है अभी, because my job was there. तो बट वो सोलन आते ही इतना प्यार हो गया सोलन से कि मैं तो बोलूंगी कि शूली माता, मेन द पावर, द मैजिक इज देयर, कि मैं कभी जा ही नहीं पाई सोलन से. इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी. और मैं हमेशा शोर में रहने वाले, मतलब आई स्पेंड माय होल लाइफ इन चंडीगढ़, एंड फिर देन आई टोल्ड यू आई वाज इन जोहान्सबर्ग आल्सो, बट स्टिल वहां से वापस आके सोलन में आना, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, बहुत शांति, पीस, सब कुछ, कि मेरा कभी यहाँ से जाना ही नहीं हुआ. It's been now almost 16 years. I'm here since 2006. So my husband is veterinary doctor with the HP government, and I have son of 13 years. So we are living here. This is such a beautiful city, small town. Everyone love each other. So that's all I loved in Solan. And of course, my job. I love my job. I love to spend time with my student at my college. Yeah. And how's everything back in Silp? Silv is wonderful, Vikrant. Still, we miss our all students, and very happy to see them where they are now. As we all can see, Vikrant is a wonderful student. We do miss you, Vikrant. Thank you, ma'am. We also miss you. Yeah. Yes, ma'am. So, like, how do you see the future of technology in future? Like, so much of boom and present scenario. Yeah. So, how do you see the future of technology in India, especially? A lot. Without technology, nothing's going to work. Even you will see in the kitchens very soon, though it is there, 50-60% already covered with bots and other electronic things, but you will definitely see the whole technology. Even tomorrow, if someone will ask about chapati also, so one machine must be working in the kitchen instead of human. So you can understand, if I'm giving that kind of example, normal human being even able to have robots at their homes, तो आप understand कर लो कि technology कितना easily available होगी सबको in future. तो technology का जमाना है, चलेगा, चाहे वो हाथ में phone से लेके हमारे kitchen में होगा. तो बहुत सस्ती भी हो जाएगी आने वाले time में, और बहुत सबकी जरूरत भी हो जाएगी. Okay. So, ma'am, like, from where do you get these good ideas? Like, आपको ये videos के लिए, I mean, how do you get these ideas? आप books वगैरह कौन सी books अगर कोई ऐसी पढ़ते हो तो please recommend me और मेरे viewers को. I mean, because like बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि मैं भी कोई वीडियो मुझे बनानी हो, मैं कैमरे के साथ बैठ जाता हूँ, तो आधा घंटा कई बार हम ब्लैंक हो जाते हैं कि भाई मुझे क्या स्टार्ट करना है, और मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं एक वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, बट वो घूम फिर के कहीं ना कहीं कुछ और उस वीडियो का बन जाता है. तो अगर मैं आपको अभी बात बताऊं, इस लास्ट वीक में आई जस्ट पोस्टेड माय वीडियो ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट. तो मुझे मेरे पास टॉपिक सब कुछ था मेरे पास में, एंड आई गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन बिकॉज आई नो जिस कंटेंट को मैं बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल कंटेंट है. आई कैन नॉट पुट लाइक कुछ भी मैं उसमें नहीं डाल सकता. सो बिल्कुल मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना था. फिर भी कई बार लगता है कि कैमरे के आगे हम ब्लैंक हो जाते हैं एकदम से. सो वेयर डू गेट दिस एनर्जी लाइक all time? Vikrant, actually, when I came in story making concept, I feel liking, I start feeling कि कुछ energy है जब मैं, और ऐसा नहीं है कि मैं story कोई कि आज इस पे बनाना है तो मैं कुछ बनाने लगती हूँ. No. स्टोरी का आइडिया क्या होता है कि कुछ भी मेरे सराउंडिंग्स में कोई किस्सा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, या इवन एक लाइन पे ही कुछ मेरे दिल में फीलिंग आ कि यार हाउ द पर्सन इज बिहेविंग, दे शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, या किसी की भी नेचर के ऊपर बात करनी हो मुझे, मैं इमीडिएटली पेन और पेंसिल लेती हूँ और कुछ लिखती रहती हूँ. डजंट मीन कि स्टोरी बन गई. द कॉन्सेप्ट इज लाइक मैं पहले 50 वर्ड्स बनाती हूँ. ये मेरे दिमाग का एक स्टोरी मेकिंग का स्टाइल है. पहले 50 वर्ड्स बनाए, फिर 50 के उसी 50 वर्ड को एक्सटेंड करके 150 और समटाइम्स 250 वर्ड्स, एंड देन सम फर्दर व्हाटएवर. एंड देन आई कैन से आई ड्राफ्ट माय स्टोरीज थ्राइस. पहले एक बार, फिर उसको रीफ्रेम करना, देन अगेन रीड्राफ्टिंग करना. सो 3 times, 1 2 3.
and then putting moral and all. You see, I love, हमारे घर में सब बहुत अच्छे readers हैं except me. मैं books को No, इतना no, ज़्यादा that's नहीं not true. पढ़ती हूँ. That's not true. No, but most of people or are like एक मैं ही हूँ सिर्फ management की, हमारे घर में all are scientists. So you can imagine all are good readers. All time they are studying. Only I'm, कहते हैं ना कि फ्री हूँ, मैं नहीं किताबों में ज्यादा नहीं टाइम लगाती, बट स्टिल आई लर्न सो मेनी थिंग्स एज अ प्रैक्टिकल. एंड जो भी मेरे दिमाग में आता है, स्टार्ट राइटिंग दोस थिंग्स. ये मेरी हैबिट शायद बहुत पहले से है. खूब सी डायरीज, मुझे अगर तुम्हें पता हो, हम तुम्हारे टाइम भी तुम स्टूडेंट्स को मैं ऑब्जर्व करती रहती थी कि तुम्हारे बिहेवियर, और खास करके ये स्टोरी मेकिंग का आइडिया शायद इसीलिए आया है 2006 से मैं ये देखती आ रही हूँ आज तक, हाउ द स्टूडेंट्स आर चेंजिंग, how their values are changing every day. They are actually not, वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, उनके पास कोई गोल नहीं है लाइफ में. तो थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजों ने शायद मुझे मोटिवेट किया और मैंने कुछ लिखना शुरू किया. और मेरी ज्यादातर जितनी भी आउटकम होती है किसी भी चीज की, वो मॉरल वैल्यूज के ऊपर है कि वी शुड नॉट फॉरगेट मॉरल वैल्यूज इन आवर लाइफ. Right. That is the most important. So that's why how I evolve अपनी पुरानी वीडियो से लेके मैं आज स्टोरी मेकिंग की वीडियोस में कैसे पहुंची. That is just an idea, just by looking at my surroundings, at my students. मेरे को इनफैक्ट मुझे भी अच्छे से याद है कि जो मैंने जैसे भी मोटिवेशन वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया, आई मीन मुझे वीडियो मेकिंग में पहले से तो शौक था ही. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर इन बीबीए, तो एक एक्चुअली मैम कंपटीशन हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे. तो 3 लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना था बीबीए से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. तो फर्स्ट ईयर से जिसके पहले की बोला कि भाई इफ एनीवन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, जिसके पहले कोई हाथ उठा सके, मेरा हाथ सबसे ऊपर था. तो मतलब उस टाइम से लेकर ही आई वाज हैविंग दैट इनिशिएटिव, लाइक लेने वाली चीज की भाई मुझे पार्टिसिपेट करना है. नंबर 2, प्रियंका ठाकुर, यू माइट नो हर. शी वाज इन सेकंड ईयर. एंड थर्ड ईयर में आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, मैम थे वो भी. तो 3 लोग हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस पे हम गए. एंड प्रियंका का कंटेंट भी इंग्लिश में था, मेरा हिंदी में था, और जो तीसरे मैम थे फाइनल ईयर में उनका भी इंग्लिश में था. तो अप्रोक्सीमेटली 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस ऑल लाइक कॉलेजेस इन सोलन एंड एडजेसेंट एरियाज, तो उतने थे. तो हमारा डाइट में था, जो डाइट सोलन का आपका आपके जस्ट घर के साथ ही है. तो वहाँ पे वो कंपटीशन हुआ था एंड आई केम फर्स्ट इन दैट कंपटीशन. सो ये एक जो हमने आप लोगों से चीज स्टार्टिंग से, मैं मतलब इस चीज पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि जो हमने सीखी है, तो वो इनफैक्ट अभी कहीं ना कहीं हमको लाइफ में आगे काम आ रही है. बट मैम अगेन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कि रादर देन फ्रेमिंग पीपल लाइक फॉर द पर्टिकुलर फॉर्मूलाज, हम उनको ये फॉर्मूलाज पढ़ा रहे हैं. मतलब हम कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि जो सच्ची लाइफ में, जो आपकी मैं मोटिवेशन वीडियोज में देखता रहता हूँ कि मतलब हमारी जो लाइफ के आधार हैं, क्या हम उन चीजों को अपने पढ़ाई में नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते किसी भी तरह, ताकि एक सब्जेक्ट भी आपका इंटरेस्टिंग बना रहे और वो भी जो चीजें लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी वो भी हो रहे. क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभी ये देखता हूँ कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो तो ना हमारी लाइफ में काम आती है और वो सिर्फ एक किताबों में बन के रह जाती हैं. सो हाउ डू यू फील लाइक? विक्रांत, वो चीजें हमेशा रहेंगी भी. अब वही बात है ना कि स्कूल में हमने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, मैंने तो आज तक नहीं अप्लाई की, बट स्टिल दोज आर द पार्ट ऑफ योर बेस. यू नो, कई चीजें हैं आपके बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं. सो आई विल नेवर कंडेम एनी सिलेबस और करिकुलम इन द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और स्कूल, वेयरएवर. I will never say anything because maybe actually not me or big educationists are there. उन्होंने ये syllabus बनाए हैं, कोई तो reason होगा basic चीजों का. So I will never say anything about that. But still, I would like to say we should add something in the syllabuses because of today's scenario. We should know practically rather than theoretically more. Like हमें कुछ ना कुछ बच्चों को ये सिखाना चाहिए, जैसे कि industrial visits होते हैं, 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 5 विजिट्स हो जाते हैं. बट मैं कहना चाहूंगी, आई थिंक एवरी 20 days और एवरी मंथ देयर शुड बी सम इंडस्ट्रियल विजिट्स फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, because at least they should know it is not only the manufacturing unit they should see, but they should see what is happening in the financial area, what is happening in HR area and marketing, sales. They should know हर एक चीज का पार्ट पता होना चाहिए. इससे क्या है, आप पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो when you are going for job, और आपको आइडिया हो जाता है is it the right path, आपने यही चूज करने के लिए ये जो MBA या BBA ज्वाइन किया, और there is something else in your mind.
तो या तो आप जॉब ढूंढोगे या आप जॉब प्रोवाइड करोगे, तो आप दोनों वही चीजें आप अपनी एजुकेशन के टाइम ही डिसाइड कर लेते हो। आई थिंक ये सब चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, कुरिकुलम में ऐड करना चाहिए सिलेबस आई में, कि अब से प्रैक्टिकली भी उतना ही होगा जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दिस इज नॉट इन आवर हैंड, दिस इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ एजुकेशनर्स, जो सिलेबस बनाते हैं उन लोगों के हाथ में है। राइट मैम, एज यू राइटली सेड कि ये चीज़ें हमको कहीं ना कहीं एक बेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, लाइक जैसे भी मतलब मेरी जब फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, मैं मुंबई में हुई थी लाइक इन 2014, तो मुझे अभी भी अच्छे से याद है कुछ चीज़ें जो हमको वैल्यू एडिशन की उस टाइम मुझे लगी थी कि कहीं ना कहीं अगर मेरे स्कूल कॉलेज में अगर वो चीज़ें होती तो उसका एक मेरे को एक एडवांटेज मिलता। नॉट लाइक जस्ट दैट हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मुझे ये लगता है कि इसका एक एडिशन स्कूल इनफैक्ट कॉलेजेस में जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, अनलेस और अंटिल यू डोंट नो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज, तो वो कहीं ना कहीं एक आपके पास एक कम्पिटिटिव एज रहता ही है अगर आप इन सब टूल्स को आप जानते हो। सो आई थिंक इन चीज़ों का वैल्यू एडिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहीं ना कहीं, बहुत। क्योंकि अगर मैं वैसे ही कह रहा हूँ, अगर आप देखो स्कूल कॉलेजेस की फीस आज बहुत ज़्यादा होगी आज के टाइम पे भी। अब अगर आप उसको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट से कंपेयर करते हो कि जो मतलब आफ्टर कॉलेज आप खुद से प्लेसमेंट ले रहे हो या कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट ले रहे हो, इनफैक्ट कोई भी कॉलेज आपको ये गारंटी नहीं देता कि आपकी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, बट दे आर हेल्पिंग एज ए ब्रिज की जो आपको कॉर्पोरेट से मिलाते हैं, तो डेफिनेटली वो ये काम कर रहे हैं। बट जो एक कम्पिटिटिव स्किल हमको चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड सम अदर थिंग्स जो हम एक वैल्यू एडिशन उसमें कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल एडिशन एक बिल्कुल होनी ठीक चाहिए। कह रहे हो। यस मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब मैं तुम्हें छोटी सी बात बोलूं, तुमने अभी मेरे से पूछा कि क्यों होती हैं ये सारी चीजें हमें, जबकि हम यूज नहीं करते हैं, हमारे बेसिक जो करिकुलम है उसको नहीं यूज कर पा रहे। यू लुक एट दिस एक्सेल, यहीं से आइडिया आया मुझे कि एक्सेल में जब तक हमें फॉर्मूलाज नहीं आएंगे, हाउ वी कैन यूज दैट? राइट। सी वी डोंट नो द नंबर्स एज सच एज वी शुड नो, तो हम उनको यूज कैसे करेंगे? सो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, राइटिंग नहीं आएगी, सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, हम ऑफिस को कैसे यूज करेंगे? सो राइट। ये सारी चीजें बेसिक हैं जो हम बनाते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, कहीं ना कहीं डेफिनेटली वी यूज देम। यू गो इन अदर स्टडीज, हमने तो जैसे मैनेजमेंट स्टडीज की हैं विक्रांत, बट लुक एट अदर पीपल, मे बी हु आर इन स्पेस, हु आर वर्किंग एज एन एस्ट्रोनॉट और समथिंग, व्हाट दे आर डूइंग, उन्होंने ये सारी चीजें कहीं यूज की होंगी दैट वी डोंट नो मे बी। सो कहीं ना कहीं फिजिक्स हुई, कोई अदर केमिस्ट्री हुई, पीपल आर यूजिंग इट समवेयर। राइट। सो टेक्नोलॉजी तो मैम इस टाइम पे एक ऐसा हमारा टूल हो गया है कि कभी एक टाइम पे हमने किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल फोन भी आएगा। लाइक इनफैक्ट अगर मैं आज सैमसंग की बात करूं, अभी सैमसंग को 25 ईयर्स इंडिया में सैमसंग ने कंप्लीट किए हैं जस्ट 2 days बिफोर। तो उसमें भी स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं था कि वो ओके, टेलीफोन है, कोई दूर बैठा है कोई बात करेगा। फिर नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल आई, बिल्कुल फिर उसके बाद में हमारे 4G का कॉन्सेप्ट आया, और अभी मतलब कुछ टाइम के बाद हम 5G भी एक इम्प्लीमेंट होते देखेंगे। तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही है कि मैं हमको नहीं पता लग रहा है कि कब हम लेजी बन, अब मैं इस चीज को ये कहूँ कि हम बहुत ज्यादा लेजी बनते जा रहे हैं। हमको कहीं भी जाना हो, कार बाइक, तो वी यूज टू हैव लाइक ऑल दोज थिंग्स। अभी भी मेरे को याद है गांव वगैरह में हम जाते तो हमको मैक्सिमम पैदल ही चलना पड़ता था। इनफैक्ट अगर मैं अभी भी आपको बताऊं, अब यहाँ पे ऐसा होगा अगर आपको 5 मिनट भी चलना है तो आपको गाड़ी चाहिए, या कुछ आपको यस खाना यस ऑर्डर यस करना है तो आप बाहर तक होटल या आप जो नजदीक में ढाबा है वहां नहीं जाना चाहते। आपको बस एक ऐप यूज करनी है, आप उसमें ऑर्डर दो एंड योर ऑर्डर विल बी एट योर बिल्कुल। डोर स्टेप। एंड वी फील दिस इज द बेस्ट थिंग। हम खुद इस चीज से निकलना भी नहीं चाह रहे हैं, बट यही हम अगर अपने पेरेंट्स से बात करें, बड़ों से बात करें, दे फील लाइक यार ये बहुत लेजी हो गए हैं, दिस टेक्नोलॉजी हैव मेड अस लेजी, इजंट इट? वो जरूर आज की डेट में भी हमें लेजी कहते हैं, कहेंगे। अगर मैं सोलन की बात करूं तो हमें कई बार लगता है कि हर छोटी छोटी बात के लिए पहाड़ों में हमें गाड़ी नहीं उठा सकते, हमें पैदल ही चलना चाहिए। एंड हर चीज को हम ऑर्डर, फोन से ऑर्डर कर रहे हैं, पर हमारे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये बातें अभी कम पसंद है। सो अगर मैं एज अ पेरेंट, आई टोल्ड यू आई हैव सन, तो अगर मैं उसको देखती हूँ, वो मेरे से भी 2 कदम आगे है, वो मेरे से भी ज्यादा टेक्नोलॉजीज में मिक्स हो चुका है, लाइक ही इज मेकिंग गेम्स, आजकल गेम्स बनानी सीख रहा है, कोडिंग कर रहा है। तो मैं उसको देखती हूँ ऑल द टाइम ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट मुझे भी बुरा लग रहा है वो।
तो सेम आई थिंक जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा ही मिल रही है और हम उससे अलग भी नहीं कर सकते। उसका भी एक और कारण है, आज की डेट में देखो सबकी सब स्कूल की क्लासेस तक ऑनलाइन। Student has to sit, my son has to sit since 8 o'clock till 12 o'clock in front of computer. Then he has to do some entertainment, then again he will sit in front of TV or playing some game on phone, and then he started new passion that he's making games now online. So 24 hours mein he's sitting in front of computer, or you can say he's a friend with technology for 18 hours, let's say. I can say, see, so a lot And of changes are coming every day. राइट, बट वन थिंग व्हाट आई Yeah. फील इज कि जितना हम लोग टेक्नोलॉजी का आज यूज कर रहे हैं, हम 24 घंटे अपने फोन के साथ घिरे रहते हैं. डू यू थिंक लाइक दैट बिल्कुल दिस थिंग इज लीडिंग टुवर्ड्स लाइक डिप्रेसिंग लाइफ? मतलब अगर आप हर जगह से देखो, डिप्रेशन के केसेस एग्जैक्टली कितने बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा. तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल अब आप इसको दोष आप टेक्नोलॉजी को दो, क्योंकि आपकी नो जो नो 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 एक्टिविटीज है वो आपकी कम हो गई है. आप चलते नहीं हो, आप कोई स्पोर्ट्स नहीं प्ले करते हो, आप हमेशा ये एक स्क्रीन के सामने रहते हो, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, हमेशा से आप स्क्रॉल करते रहते हो. और आज की डेट में आप चाहे जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है, चाहे आप फेसबुक की बात करो, तो उनके एल्गोरिदम ऐसे सेट हो गए, एक बार आप देखना स्टार्ट करते हो तो 1 घंटे का 2 घंटा कब निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं लगता. यू नेवर नो यस इवन विक्रांत मैंने सेम चीज कोट किया अपनी एक वीडियो में टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाई दैट वी डोंट नो कि हमने जो स्टार्ट किया था सिर्फ एक मैसेज पढ़ने के लिए जब घड़ी पे टाइम देखा आधा घंटा हो चुका होता है हमने सिर्फ एक वो सिंगल मैसेज नहीं पढ़ा हमने उसके साथ के आगे के पीछे के अननेसेसरली रिक्वायर्ड सब कुछ हमने वो रीड कर डाला विच वर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड सो दिस इज ऑल्सो द टेक्नोलॉजी एज अ थ्रेट देखूंगी मैं इसको इस टाइम बट टेक्नोलॉजी ने साथ भी बहुत दिया यू कैन सी यू आर सिटिंग सो फार फ्रॉम मी स्टिल वी आर टॉकिंग टू ईच अदर दिस इज राइट, ऑल्सो वेरी प्लेजेंट थिंग दैट वी आर डूइंग राइट. सो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं बहुत हेल्प भी है हमें और नेगेटिव पार्ट भी बहुत है एंड रही बात तुमने कहा डिप्रेशन यस नो डाउट मेरे से अच्छा इस टाइम आपको कोई एग्जांपल नहीं दे पाएगा विक्रांत आई जस्ट फॉर 15 days आई वाज पैक्ड इनसाइड माय होम आई वाज नॉट अलाउड टू गो आउट बिकॉज आई वाज कोविड पॉजिटिव सो सी फॉर 14 days अगर मेरे पास ये फोन या टेक्नोलॉजी ना होती सोचो मैं क्या करती इस चार दीवारी में सो समवेयर इट हेल्प मी ऑल्सो बट आई रियली मिस्ड आउटसाइड वर्ल्ड मैंने बहुत मिस किया अपने कॉलेज को माय फ्रेंड्स को मीटिंग दो आई वाज टॉकिंग एवरी टाइम ऑन फोन बट मैं सच में बहुत मिस किया बाहर निकलना घर से कुछ और नहीं तो ग्रोसरी करने को मैंने मिस किया कॉलेज जाने को मिस किया फ्रेंड्स से मिलने को मिस किया दो आई वाज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस बट वो जो पार्ट है ह्यूमन से मिलना वो सोशल लाइफ को मैंने बहुत मिस किया 15 दिन में Okay. तो So, टेक्नोलॉजी Malab, ma'am, this 2020 year is like it has या hit us very hard, very hard. I यस नो mean, I डाउट also feel for people like who has lost their jobs recently. क्योंकि मैम इस साल में भी अगर आप देखो तो एक फिगर निकल के आता है, एटलीस्ट 18 to 20% लोगों ने अपनी जॉब या किसी का कोई भी छोटे लेवल पे था उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है. और इनफैक्ट मैं भी कई बार अपनी वीडियो में भी यही चीज बोलता हूँ कि हमारे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी विक्रिब. मैम, इट वाज नाइस हैविंग टू यू ऑन माय शो. काफी ज्यादा अच्छा लगा, पुरानी मेमोरीज मतलब जो हमारी सिल्प की थी वो आज बहुत ज्यादा ताजा हो गई. तो प्लीज मैम इसी तरह से हम लोगों को आगे मोटिवेट करते रहिए और थोड़ा सा हमको एक और मोटिवेशन लगता है आपकी जब भी वीडियोस आती है तो हमको एक अलग से एक एनर्जी मिलती है कि हम भी एक कुछ अच्छा काम करें. तो मैम इसी तरह आप भी सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए, लोगों को अच्छे कामों के लिए प्रोवोक करें तो वो ज्यादा बेटर है. आपकी वीडियो वो काम कर रही है. तो आई मीन जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैम के आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो उसे शेयर कर दें. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मैम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग. इट्स अ गुड टाइम मैम. थैंक यू सो मच.